रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करें। ओके सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक हो गया, स्टार्ट करें मुनीब इसको प्रॉपर। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। I am Mohammad Munib Khan, executive member of ICE UT Textile chapter, and I warmly welcome our respected guest of today and all of you to this webinar. Our speaker for the evening is Sir Kashif Bashir. Sir Kashif Bashir has done his BSc Civil Engineering from UT Textile, session 2K12 to 2K16. After his graduation, he initially worked at NESPAC and is currently working as Sub-Divisional Officer in Wabda. Sir Kashif has worked at two main projects as a professional that are Mohammed Dam and Wiki Power project. This was a brief introduction of our respected guest. Now I would like to share the mic with my co-host, Hiba Yasir. Hiba, please carry on. Thank you. Assalamu alaikum. I am Hiba Yasir, General Member of ICE UT Daxela chapter, and I welcome you all. I hope you're all doing great. With that being said, let me dig in a little into the society. The Institution of Civil Engineers, ICE, is an independent professional association for civil engineers and a charitable body in the United Kingdom. Based in London, ICE has over 95,000 members, of whom 3/4 are located in the UK, while the rest are located in more than 150 other countries. The ICE aims to support the civil engineering profession by offering professional qualification, promoting education, maintaining professional ethics, and liaising with industry, academia, and government. ICE awards professional qualifications that hold standards of being equivalent to an industrial criteria, leading the debates around infrastructure and the built environment, and providing an unmatched level of training, knowledge, and thinking. So, as we are all aware of the ongoing situation, thus the main purpose of organizing this event was so everyone can make most of it. Now, without any further delays, I would like to invite our honorable guest, Ms. Sir Kashif Bashir. Over to you, sir. Thanks a lot. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank ICE management, especially Sarosh Aziz, for giving me this opportunity to interact with the students of UT Textile and other university community. It's a great honor. तो हम लोग इसको डिले किए बगैर स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमारे पास आजकल क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग फाइनल ईयर में हैं। कैन यू हियर मी? जी आवाज आ रही है। ओके हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आजकल आप मतलब कि हमारे यहाँ पर ये सीन चल रहा है कि आप लोगों का फाइनल ईयर है, स्टूडेंट निकलता है ग्रेजुएट होके, उसके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं होती है, उसने क्या करना है कुछ नहीं सोचा होता। लाइक वो बाय चॉइस रैंडमली एक इंजीनियरिंग चूज करता है, एक फील्ड चूज करता है, उसमें आता है, उसके बाद वो एक प्रोफेशनल डिग्री लेता है और डिग्री लेने के बाद वो बिल्कुल ब्लैंक माइंडेड होता है कि मैं अब क्या करना। उसके बाद वो सोचना स्टार्ट करता है कि मैंने करना क्या है। तो ये बेसिक फॉल्ट इतना आ रहा है इस चीज में ना। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आप लोगों का फाइनल ईयर है, तो मैं इसको फाइनल ईयर से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने फर्स्ट ईयर्स में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों ने जाना किस तरफ है। आई मीन टू से कि आप अपना गोल तब तक सेट कर चुके हों, आपके पास एक क्लियर डेस्टिनेशन होनी चाहिए कि हाँ जी मैंने इस वे में ट्रेवल करना है और मेरा इंटरेस्ट ये है। इसके लिए आपके पास जो है ना, आप अपनी 3 चीजों को पहले आइडेंटिफाई करें। आप में स्किल्स कौन कौन सी हैं, आपका टैलेंट क्या है, और थर्ड इसमें है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक हैं। आप लोग इस चीज को ऐसे लेके चलें कि जो आपका पैशन है वही प्रोफेशन है। यानी कि मैं इसको इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग चूज करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। लाइक इसको हम लोग जैसे कि कुछ बंदा एमएस करना चाह रहा है और अब्रॉड जाने में इंटरेस्टेड है, तो उसकी वर्किंग उस पर आफ्टर 6 मंथ्स स्टार्ट हो जानी चाहिए कि मैंने अब्रॉड जाना है, मैंने वहां से
MS करना है, मैंने PhD करनी है, जो भी उसके इंटरेस्ट हैं, उसको चाहिए कि वो उन चीज़ों को वहाँ से स्टार्ट करके परस्यू करना कि ये कैसे होंगी, कहाँ से होंगी। सेकेंडली सेकंड इसमें एक चीज़ आती है कि हाँ, कोई इस तरह के भी लोग होंगे आप लोगों के साथ जिनका जो है ना वो पैशन होगा कि मैंने साइट पे जाना है, मैंने वर्किंग देखनी है कि सिविल इंजीनियरिंग जो है इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है और जो हमने पढ़ा है वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट होता है फील्ड में। तो कुछ लोगों को साइट पे जाने का बड़ा शौक होता है, साइट देखने का, लाइक जैसे अभी हमारे पास डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है, मोहम्मद डैम का। तो काफी लोगों को इंटरेस्ट होगा कि हाँ जी, डैम्स हमने पढ़े तो हैं, लेकिन अब हम इसको देखें कि जो डैम्स वगैरह हमारे यहाँ वहाँ पर एक्चुअली होता क्या है। तो एक एक ये भी आगे आपके पास एक आगे की मैंने फर्दर स्टडीज करनी है, मैंने जाना है, मैंने अब्रॉड जाना है, या मैंने यहाँ से MS करना है, मैंने PhD करनी है, मैंने टीचिंग लाइन में आना है। सेकंड होगा कि साइट वर्क का जो पैशन है कि मैंने साइट पे जाना है, मैंने इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, जो भी हमने थ्योरीज और वो जो भी हमने पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट किस तरह हो रहा है। हमारे सिविल इंजीनियरिंग में ही एक और फील्ड है जिसको हम कहते हैं ऑफिस जॉब। ऑफिस जॉब मीन्स कि आप डिजाइनिंग में जाना चाह रहे हैं, समवन लाइक टू डिजाइन कि मैं बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग्स डिजाइन करूं, मैं कुछ डिफरेंट करूं, मैं कुछ इनोवेटिव करूं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो डिजाइनिंग में आ जाते हैं, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में। तो ये एक वाइट कॉलर जॉब होती है, ऑफिस जॉब होती है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने ऑफिस में बैठ के काम करें। ठीक है, फील्ड के साइट के विजिट्स में होते हैं ऑफ एंड ऑन, लेकिन ये है कि आपका जो मोस्टली है 90% वर्क आपका ऑफिस वर्क होता है। इसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनको इस चीज का होता है कि जी मैंने तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, मेरी पब्लिक डीलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, लोग मुझे जाने, एक नाम होना चाहिए। कुछ लोगों के घर वालों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा जो बेटा है या बेटी है वो लोग कहें कि हाँ जी आप मतलब कि आपका बच्चा या बच्ची ऑफिसर है। तो जो मैंने ये चीज देखी है हमारे यहाँ पर जो है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा जो है इसी चीज पे ना सबका फोकस होता है कि हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में आने का मकसद ये होता है कि एक तो ठीक है परमानेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है। सेकंड इसमें ये होता है कि हमारे माशरे में एक गवर्नमेंट ऑफिसर को इज्जत जो मिलती है वो एक प्राइवेट जॉब होल्डर को नहीं मिलती। और जो मतलब कि हमारे यहाँ पर एक स्टाइल है जॉब करने का इनका गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, वो बहुत हटके है। जो एक सिविल इंजीनियर किसी प्राइवेट फर्म में किसी साइट पे डिप्लॉय है, उसको कुछ शायद जानता भी ना हो, लेकिन जब एक सब डिविजनल ऑफिसर एक एरिया में आके अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है तो सबको अच्छी तरह पता होता है कि यहाँ पर फलां बंदा आके एसक्यू लगा हुआ है। ये एक नॉर्मल सी बात है हमारे। इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करता हूँ कि कुछ लोग हैं उनका ये होता है कि हमने किसी के अंदर जॉब नहीं करनी, हम लोग अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। आपको ये सब कुछ चीजें बताने का मकसद ये है कि आप पहले खुद को आइडेंटिफाई कर लें कि आप क्या चाह रहे हो। अब एक बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं है कि लोगों के साथ मिले, पब्लिक डीलिंग करे, या फिर उसका माइंड कुछ और तरह का है, तो वो बंदा पहले खुद को आइडेंटिफाई करे कि मैंने, हाँ जी मैं सुकून चाह रहा हूँ, मैंने ऑफिस जॉब करनी है, नहीं मेरे में पैशन है, ठीक है, मैंने साइट पे जाना है, वहां पर डिफिकल्टीज देखनी है, एक सिविल इंजीनियर को साइट पे जाके क्या क्या हार्डशिप्स होती हैं वो सब कुछ देखना है। तो पहले आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग आइडेंटिफाई करें इस चीज को कि आप चाह क्या रहे हो। देन आप एक लाइन पकड़ें, आपकी जो है ना लाइन ऑफ एक्शन वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए कि मुझे इस चीज करने में 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, ठीक है, मैंने इस चीज को हासिल करके रहना है। तो मैं अगर आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैंने आई वाज ग्रेजुएट इन 2016, आफ्टर दैट मैंने जॉब कर ली नेस्पाक में। इट वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ CPET 1180 megawatt combined cycle power plant at Biki in Sheikhupura। देन हम लोग वो एक नेस्पाक जो है वो कंसल्टेंट है बेसिकली, यानी कि कंसल्टेंट क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान जो है वो एक लिंक के तौर पे काम करता है। बिकॉज इंटरनेशनल जो हमारे पास हैं प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें
क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। क्लाइंट भी कॉन्ट्रैक्टर से इंटरेक्ट करता है कंसल्टेंट के थ्रू, और जो है कॉन्ट्रैक्टर वो भी क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है कंसल्टेंट के थ्रू। So it was a mega project of 86 billion rupees, and I have a very great experience of this project. बहुत फायदा हुआ मुझे उससे, वहाँ पर मैंने 2 साल गुजारे। लेकिन जिस तरह वो प्रोजेक्ट जो है वो एंड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, लाइक वो प्रोजेक्ट अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा था, तो हमें इस तरह फील हो रहा था कि जैसे मतलब कि ना यहाँ पर हमारा जो है वो काम खत्म होता जा रहा है, प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, तो इससे नेक्स्ट क्या है। पहले तो मतलब कि पहला 1 साल तो गुजरा बड़े ही साइट वर्क चल रहा था। देन ये कि वहाँ पर सिविल वर्क्स कंप्लीट हुए, E&M के काम स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क स्टार्ट हुए। तो उसके बाद जब E&M की भी फाइनल स्टेजेस आ गई, तो तब हमें एहसास हुआ कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। सो नेस्पक ने हमें एक चॉइस दी कि हमारे पास और प्रोजेक्ट्स नहीं है यहाँ पर, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से, हम आपको कहीं दूर सिंध में या कहीं और भेज देते हैं, उसके लिए आपको हम इंसेंटिव भी देंगे। तो उस टाइम हमें पता चला कि नहीं यार, मैं तो ये चीज़ चाहता ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह साइट्स पे जाऊँ, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। नो डाउट इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। इंटरनेशनली जो है हमारे पास कंसल्टेंट्स थे, हमारे साथ जो अटैच थे, लमायर फ्रॉम जर्मन, तो उनके साथ हमने इंटरेक्ट किया, वहाँ पर उनके साथ हमने वर्किंग की, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन इन द लॉन्ग रन उसका ना वो फायदा नहीं था हो रहा जो हमें होना चाहिए था। लाइक कि वो एक परमानेंट सेटल होने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट अ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस जो हमने वहाँ से गेन कर लिया। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे 2015-16 में 15-16 में इन्होंने चाइना से डिमांड किया था कि हमें आप लोग सीपेक के फर्स्ट फेज में एनर्जी प्रोजेक्ट्स दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ये लोड शेडिंग का बहरान चल रहा था। और सेकेंडली इन्होंने उनसे मोटरवेज और हाईवेज मांगे थे, जो कि अभी इसका फर्स्ट फेज सीपेक का कंप्लीट हो गया है। तो सीपेक के इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बिखी पावर प्लांट, बल्लो की पावर प्लांट, हवेली बहादुर शाह, साहिवाल कोल पावर प्लांट, और अब हवेली 2 भी चल रहा है इस पे, ठीक है। ये 5-6 थे, टोटल ऑफ 11,000 मेगावाट जो है वो हमारे नेशनल ग्रिड में ऐड होना था। सो जब वापस चलते हैं अपनी इसी बात पे, जब हम लोग जब 2 साल कंप्लीट हुए, उन्होंने हमें यहाँ से सिंध जाने का ऑप्शन दिया, तो मैंने स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 बातें थी, या तो आप सिंध चले जाओ या फिर आप घर चले जाओ। तो ना हालात को देखा तो मैंने कहा भाई अब घर जाना बनता है, सिंध जाने की बजाय ना इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा। फिर बैठ के पूरा 1-2 माह इस पे वर्किंग की, हाँ भी क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन थे कि दुबई में जॉब्स हैं, यूएई चले जाएं, वहां पर एक हैंडसम आपको सैलरी मिलती है। करेंसी डिफरेंस हमारा इतना है कि वो सैलरी यहाँ के हिसाब से हैंडसम बन जाती है। जो पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो इतना आपको पे नहीं कर पाते। तो फिर बैठ के हमने डिसाइड किया, सोचा इस चीज को, तो तकरीबन इसी में 2 माह गुजर गए, सोचते हुए कि नेक्स्ट क्या है हमारे लिए ना। फिर इस चीज का ख्याल आया कि अब हमें मतलब कि मुझे चाहिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ का ध्यान हुआ तो पता चला कि जेल इज अ प्रॉपर एक सिस्टम है उनका। पहले टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, कंपटीशन है, ठीक है। तो उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया। सो थोड़ा जैसे अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैंने भी बहुत लोगों को सुना है, ऐसे कुछ दोस्त थे, कुछ सीनियर्स थे, उनसे पूछा कि हाउ टू प्रिपेयर, कहाँ से स्टार्ट करना। पहले पेपर दिया मैंने, अपने कुछ कोर्सेज खोले बीएससी के, वो पढ़ के पेपर देने गया, तो कुछ समझ में ना आया कि ये पेपर आया कहाँ से। तो उसके बाद फिर थोड़ा एहसास हुआ कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो उसको देखना पड़ेगा कि चीजें आ कहाँ से रही हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग टेस्ट क्लियर कर रहे हैं वो भी तो सिविल इंजीनियर्स ही हैं, वो भी तो कुछ कोई हमारे जूनियर्स थे, कुछ सीनियर्स थे। तो
उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा तो है ना, उन्होंने कुछ लर्न किया है इस तरह का, तो इसमें क्या ऐसा उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट किया, किससे टाइम लिया इस तरह करके ना, कि मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के जब आप फ्री हो तो मुझे 5 मिनट में मैंने आपसे कुछ चीजें पूछनी है। सो जब इस तरफ ध्यान हुआ तो फिर उन्होंने गाइड किया थोड़ा सा कि हमारे पास जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका एक पैटर्न है प्रॉपर। पैटर्न उनका ये होता है कि उनके एग्जाम में 80% पोर्शन टेक्निकल होता है जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, और उसमें जो है 20% उसमें जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामियात एंड साथ करंट अफेयर्स, पाक स्टडी, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने जो 20 हैं इनमें उन्होंने सब कुछ डाला होता है जो आपके जितने भी जनरल सब्जेक्ट्स हैं। अब उसको देखा तो पता चला कि हाँ जी, ये जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं इनको तो कवर करना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है, तो हम फोकस करेंगे अपने टेक्निकल पोर्शन पे। सो आप बीएससी किए भी तब 2 साल हो चुके थे, फील्ड का एक्सपीरियंस था, किताबों से थोड़ा दूर हो गए थे, लेकिन ये कि फिर उसको हमने 0 से स्टार्ट किया। एक बड़ी फेमस बुक है, हर बच्चे को उसका पता होगा, आजकल हर बंदे के हाथ में बुक है, जो भी बंदा आजकल प्रिपरेशन कर रहा है, कुर्मी एंड गुप्ता, सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल टाइप बाय कुर्मी एंड गुप्ता। तो उसको लेके प्रिपरेशन स्टार्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर किया हमने, टेस्ट दिया, तो जहां पर पहले गैप था हमारा मेरिट से 10 मार्क्स का वो रह गया, 4 से 5 नंबर का डिफरेंस रह गया। 4 से 5 नंबर जो है मेरिट से नीचे रह जाना, तकरीबन 2-3 दफा ये सिलसिला हुआ। उसके बाद फिर मतलब कि बंदा इसमें थोड़ा सा ना हिम्मत हारता भी है, थोड़ा बंदा ना उम्मीद होता है कि यार बहुत मुश्किल है, इतना तो मैंने मेहनत की है तो फिर भी नहीं कुछ हो रहा। तो फिर से कुछ कोलीग्स से, दोस्तों से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि नहीं यार, अभी आपको और वर्क करना है, अभी आप थोड़ा दूर हो इससे। तो सीट्स भी सिविल की हैं कि अगर तो आए तो साल में 4 दफा आ जाएं, और अगर ना आए तो बिल्कुल ही ना आए। तो ये है कि उसके बाद फिर से दोबारा सीट्स आई, फिर टेस्ट दिया, तो फिर डिफरेंस वाज लाइक 0.5, और ये जो है ना 0.5 वाला, ये उस 4 से 5 नंबर से ज्यादा तकलीफ देता कि यार इतना क्लोज आके रह गया। एक दफा 0.5, एक दफा 0.25, क्योंकि पीपीएससी के पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, तो वो आपके जो मार्क्स हैं वो पॉइंट्स में आते हैं टेस्ट में। तो ये है कि इनको जो है ना फिर से हिम्मत हार के सब कुछ एक दफा फिर से थक गया कि यार नेक्स्ट में नहीं, टेस्ट में जो होगी देखी जाएगी, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिजनेस में वो इंटरेस्ट नहीं था, है इंटरेस्ट तो इसी चीज में था कि हाँ जी गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है अपना। तो फिर से हिम्मत जताई, दोबारा से किताबें उठाई, फिर से टेस्ट सी साइंस, और इस दफा लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सीएनडब्ल्यू, वापडा, इन चारों डिपार्टमेंट्स में, और पीडब्ल्यूडी, इन 5 डिपार्टमेंट्स में से 9 में सीट्स आई मींस के लाइक सबकी सीटें से साथ साथ आ गई। ये हमारे जो है कोविड वाला लॉकडाउन जो है इससे पहले की बात है। तो बहुत प्रिपरेशन की हुई थी, तकरीबन 6 माह से पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला टेस्ट हुआ लोकल गवर्नमेंट का, म्यूनिसिपल ऑफिसर का, एमओआई का। उस टेस्ट में जब हम बड़ी तैयारी के साथ गए टेस्ट देने के लिए, तो जो जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने तैयारी की हुई थी उस पैटर्न पे जो पेपर में आया होगा, दैट वाज के तब 80+ सीट्स थी, और आई थिंक कि मेरिट फिर भी 40 पे गिरा आके, और बहुत सारे लोग फेल हो गए जिनमें मैं भी शामिल हूँ। इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद पीपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया। तो जिस दिन वो पेपर दे के आए तो वापस आके ग्रुप में डिस्कशन हुई, सबसे बात वगैरह हुई, तो उनसे पूछा भी हाँ क्या करना है। हर कोई ना जिससे करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा नॉर्मल सी बात है कि अपना गुस्सा निकालते हैं, भड़ास निकालते हैं, उनको बातें कर रहे हैं पीपीएससी वालों को कि इन्होंने क्या किया है, हमने इतनी मेहनत की हुई थी। तो खैर
कुछ भी नहीं, चुप करके बैठ गए कि यार अब जो बुक्स है ना ये बंद है, अब नहीं पढ़ना, फायदा ही कोई नहीं है किसी चीज का, मर गए हैं हम लोग पढ़ पढ़ के, टेस्ट दे के, कोई नहीं फायदा हो रहा। तो तकरीबन उसके ही एक वीक बाद डेट आ गई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ना टेस्ट की। तो मेरे फादर ने मुझसे कहा, कहते हैं कि तुम्हारा टेस्ट की डेट आ गई है, तुमने कुछ स्टार्ट नहीं किया रिवीजन वगैरह। तो मैंने कहा जी बस मैं ना हार चुका हूँ, मेरी बस हो गई है, किस्मत में ना कुछ और ही लिखा है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि उन दिनों मैं एक कोई हाथ देखने वाले ने मेरा हाथ देखा एंड डिसाइड किया आपके हाथ में तो गवर्नमेंट जॉब की वो लाइन ही नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो मुझे कुछ उस बंदे ने बड़ा तोड़ दिया कि मैंने कहा इसने भी कह दिया है, वहां से भी मेरे साथ इस तरह के चांसेस हो रहे हैं कि कभी 0.5 कभी 0.25 कभी पैटर्न सी। तो मैंने कहा अब तो ना इम्पॉसिबल है। तो ना मुझे एक दोस्त की कॉल आई, उसने कहा कि हाँ भाई कहाँ तक पहुंच के रही है। मैंने कहा मैं तो नहीं कर रही। उसने पूछा क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने बताया उसको, मैंने कहा कि यार पहले तो ये कि थोड़ा पहले डिसाइड थे इन चीजों से, और ऊपर से ये जो हैं कोई नजूमी साहब थे हमारे रियलिटी की वो। तो मैंने कहा ये मुझसे क्यों झूठ बोलेगा, ना तो इसको मुझसे कोई, इसके मुझसे कोई पैसे लेने थे या फिर कुछ और था, तो ये मुझसे क्यों झूठ बोलेगा, मुझसे सीधी बात करेगा। तो उसने कह दिया जी आपकी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती। तो इस चीज को लेके मैं फिर थोड़ा और हो गया। खैर उसने कहा यार मेरी बात सुनो, आप रिवीजन स्टार्ट करो, आप फिर से अपना वो उसको चीजों को रिवाइज करो, तैयारी पहले ही है आपकी, 8 दिन और हैं, आप 8 दिन पढ़ के टेस्ट दे लो, अल्लाह करेगा तो आपके नसीब में सब कुछ ही है, किसी की बातों पे नहीं जाते होते। खैर एक पढ़ा लिखा बंदा, मतलब कि अभी मैं ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर, और एक ऐसे बंदे की बात सुन लेना, ये मतलब कि अब मुझे अजीब लगता है, लेकिन तब मुझे वाकई लगा कि यार ये बंदा ठीक कह रहा है। तो ये बंदे पे ना फेजेस होते हैं, एक स्ट्रगल का फेज होता है, तो उस टाइम ना बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जो आपको बाहर से देख रहे होते हैं वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। सो जब वहां से उसके बाद जब टेस्ट आया, पब्लिक हेल्थ का टेस्ट दिया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया था, फिर CNW का टेस्ट हुआ। तो खैर मेरा रिदम बन गया, मैंने बगैर तैयारी के मैंने CNW का टेस्ट दे दिया। देन उसके बाद वापडा की सीट्स आई हुई थी, उनका भी टेस्ट आया, वापडा का भी टेस्ट दे दिया। और उसके तकरीबन कुछ 2 वीक्स बाद PWD का था, मैंने वो भी टेस्ट दे दिया। तो मैंने ये चारों टेस्ट एक लाइन में दे दिए, लाइक विद इन 1.5 मंथ्स, 6 वीक्स में मेरे ये चारों टेस्ट हो चुके थे। और जब फिर रिजल्ट आना स्टार्ट हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक हेल्थ में भी क्लियर, CNW में भी क्लियर, वापडा में भी क्लियर, और PWD में भी क्लियर। तो जब टेस्ट पहली दफा क्लियर होता है बंदे को बड़ी फील आती है कि लाइक कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आपका होता है वो बड़ा हाई हो जाता है कि वाकई यार शायद मुझ में भी कमी थी, या कंपटीशन इतना था कि मैं अभी इस लेवल पे नहीं पहुंच सका था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज कोट करता हूँ कि अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो फॉर गवर्नमेंट जॉब, आप कंपटीशन में आके compete कर रहे हो अपने जो भी आपके बाकी हैं आपकी फील्ड के लोग, और आपका कुछ इस तरह का सीन हो रहा है मेरे वाला जिस तरह टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो एक बात पक्की समझ लो कि आप अभी उनके इतनी मेहनत नहीं कर रहे, या आपकी वो लक नहीं चल रही। ये बंदे की लक भी होती है इसमें, ऑलमोस्ट आपका जो है ना 30% लक है, 70% आपका हार्ड वर्क है। तो आप इस चीज को सोच लो कि यार मैंने और हार्ड वर्क करना है, मैंने और मेहनत करनी है, मैंने और तैयारी करनी है, कुछ चीजें मिस हो रही हैं मुझसे, ठीक है, वो चीजों को मैंने जो है प्रिपेयर करना है, और मैं फिर अगेन फिर जाऊंगा। जब तक आपके पास एक आपकी जो है एज है, मतलब कि आप ओवर एज नहीं होते हो, ठीक है, तब तक आपने ये चीज बात जहन में बिठा लेनी कि मैंने इस पे ट्राई करना है। देखो इसमें एक बेसिक चीज ये है कि आपने अपने गोल से स्टिक रहना है। आपको उसमें 6 माह लग जाए, 1 साल लग जाए, ठीक है, अपने ट्राई करते रहना है। बिल्कुल आपने ये नहीं कहना कि ठीक है, बंदे के लिए टाइमली बंदे पे आता है वो थोड़ा सा कि यार मैंने क्या कर दिया है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो एक कहते हैं ना कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, है ना, वो फील आती है बंदे को।
तो ये है कि आपने ये फील बिल्कुल नहीं लेनी। आपने कहना कि नहीं मैं फिर ट्राई करूंगा। अगर आप दोबारा से दोबारा इसको ट्राई करोगे, अगेन एंड अगेन उसको ट्राई करोगे, तो वो चीज़ हो जाएगी। और साथ आपने ये चीज़ अपने में खुद को आपने खुद ही इवैल्यूएट करना है। उस टाइम पे आपको कोई बंदा इवैल्यूएट नहीं कर सकता कि आप में यार आप कहाँ से चीज़ें मिस कर रहे हो। तो जो है आपका पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, आप उसको देखेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है? लास्ट टाइम एमसीक्यूज़ आए थे, तो वो कहाँ से आए थे, मुझे कौन-सा क्वेश्चन मेरा वीक किया है पेपर में, आप उस क्वेश्चन को पकड़ के वर्क करें। अब आगे चलते हैं थोड़ा-सा। हमारे यहाँ पर टेस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, कमीशन्स हैं जिनके थ्रू हायरिंग होती है। तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे 80% जो लोग हैं उनका यही माइंड होता है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो गवर्नमेंट जॉब आजकल जो है ना, उसका ये पैटर्न है कि आपको पहले टेस्ट देना पड़ता है, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो टेस्ट की तैयारी के लिए 2 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बड़े होते हैं, ब्राइट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होते हैं, जिन्होंने बुक्स पढ़ी होती हैं अपनी इंजीनियरिंग में। मोस्ट स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी स्लाइड्स पढ़ के पेपर देते रहे हैं। मतलब कि जो भी सब्जेक्ट का क्विज है, एग्जाम है, बुक को तो हाथ नहीं लगाना, जो स्लाइड्स में है स्लाइड्स की आप पास पेपर किए उठा के, यानी कि जुगाड़ पे चलते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी में ना। एक बड़ी सिंपल सी बात है कि मैंने एक अच्छा जीपीए मेंटेन करना है और मैंने बस डिग्री लेनी है यहाँ से टाइम पे। बाकी इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में कि मैं बुक्स को रिलेट करूँ। स्लाइड्स में और बुक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो प्रॉपर वे है वो तो है कि आप अपनी जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनकी आप अगर बुक्स लें, लाइक कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, आरसीसी है, और उसके अलावा सर्वेइंग है, इरिगेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है। आप जो मतलब कि आपको बुक्स आपके सब्जेक्ट्स में आपके टीचर ने रेफर की थी, एटलीस्ट उनकी आप एक बुक लें, बुक में से टॉपिक्स पढ़ें, जो आपके जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है? ये एक प्रॉपर वे है इसको ना दूसरा कमीशन को क्लियर करने का कि आप इसके टेस्ट देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, तो आप कमीशन से क्लियर होके आप एक ऑफिसर की सीट पे आ जाएंगे। जो दूसरा तरीका है वो सेम पहले वाली बात कि वो एक स्मार्ट वर्क है, लाइक के शॉर्टकट है। उसके लिए जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे दोस्तों का है जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जॉब्स कर रहे हैं, सबसे पहले ये एक बुक पकड़ते हैं जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल टाइप बाय खुरमी एंड गुप्ता। वो बुक लेके उसको रीड आउट करते हैं विद एक्सरसाइज। देन हमारे पास 2-3 साइट्स हैं। इंडिया बिक्स बहुत ही फेमस साइट है जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और जो हमारे मिशन वाले जो हैं पीपीएससी, एफपीएससी, इवन एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस, जितने भी हैं ये सब वहां से एमसीक्यूज लेते ही लेते हैं। देन एक साइट है एग्जामवेडा, वहां पर इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वहां से भी बाजू का क्वेश्चंस लिए जाते हैं। और जब पीपीएससी ने पैटर्न घुमाना होता है और ये क्या चीजें ऊपर से करनी होती हैं, फिर वो खुद मतलब कि सैन फाउंड्री एक साइट है, वहां से उठाते हैं एमसीक्यूज। सैन फाउंड्री थोड़ी हट के साइट है, एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है, लाइक थोड़ी जो है ना, जो इंजीनियरिंग हम पढ़ के हैं उससे थोड़ी हट के है, लेकिन उस पे क्वेश्चंस हैं सिविल इंजीनियरिंग के। तो आई डोंट नो कि वो क्या सीन है, बहरहाल ना ये है कि ये जब इन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज करना होता है तो ये सैन फाउंड्री को अप्रोच करते हैं। यानी कि हमारे जो पब्लिक सर्विस वाले लोग हैं वो भी खुद से एमसीक्यूज नहीं बनाते, वो भी डिफरेंट साइट से बुक से एज इट इज उठा के देते हैं। तो इस सिस्टम को ना स्टूडेंट्स ने क्रैक कर लिया हुआ है, क्योंकि मैं इस एक पूल में रहा हूँ जिसमें हम लोग तैयारी करते रहे हैं सारे दोस्त वगैरह। तो ये चीजें हमारी फिंगर टिप्स पे होती थी आके ना कि हाँ जी ये एमसीक्यूज कहाँ से उठाया गया है, किस तरह उठाया गया है, प्रॉपरली ना इसको एक क्रैक कर लिया गया पीपीएससी करता क्या है। यानी कि जो है ना पीपीएससी का माइंड या बाकी जो टेस्टिंग अथॉरिटीज इनका जो माइंड है उसके साथ मतलब कि हम लोग खेल चुके हैं।
इतना इस चीज में हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की है। अब इनके साथ आप लोग अपने जो हैं कुछ चीजें इनमें से जो है आपको इनसे हटके क्या करनी पड़ेंगे, लाइक जिस तरह कंक्रीट है, कंक्रीट पे फ्रेश कंक्रीट पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक स्लम टेस्ट होता है, उस पर एक टेम्परेचर का टेस्ट होता है। अब हार्डन कंक्रीट है, उस पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का होता है, सेपरेटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉइल पे टेस्ट जो है वो कौन कौन से हैं, साइट पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म होता है, लेबोरेटरी में कौन सा होता है, और कौन सा टेस्ट जो है वो साइट और लेबोरेटरी दोनों पे होता है। खैर आपने प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन करके आप लोग आगे नेक्स्ट स्टेप पे आगे आपने क्लियर कर लिया अपना जो है वो एग्जाम। नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो आपका जो है 90% लक केस, प्रिपरेशन होती है उसमें भी, लेकिन इंटरव्यू को हम डिफाइन करते हैं कि इंटरव्यू एक लम्हा होता है। अगर आपका अच्छा गुजर जाए तो आप सिलेक्ट हो, और अगर थोड़ी सी बैड लक हो जाए तो ठीक है, ट्राई अगेन। तो ये है कि इंटरव्यू में कमीशन का ये तरीका होता है कि उनका 3% का बेंच होता है। एक उसमें ब्यूरोक्रेट होता है जिसको हम मेंबर बोलते हैं, जो उसको चेयर कर रहा होता है। दूसरा उसमें होता है एक टीचर होता है, वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर टाइप बंदा होता है जो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन करता है। और थर्ड एक जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट हायरिंग करने जा रहा है, उस डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके साथ। तो 3 लोगों का बेंच होता है जो आपको जज करता है कि वेदर यू आर सुटेबल फॉर दिस सीट और नॉट। तो ये 3 लोगों का बेंच जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो मेंबर हैं जो इंटरव्यू को चेयर कर रहा होता है वो आपसे सबसे पहले आपसे इंट्रो लेगा। देन वो इंट्रो में से ही आपको एक दो क्वेश्चन करेगा कि आपने एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग की, आपने यूटी लाहौर से क्यों नहीं की। ऑब्वियसली कुछ लोग मतलब कि ऐसा बोल देंगे कि हाँ जी मेरा मेरिट नहीं बना यहाँ पे, कुछ लोग और रीजन देंगे। तो आपके पास इनकी एक वैलिड रीजन होनी चाहिए। उसके बाद एक दो क्वेश्चन करके आपके इंट्रो में से वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देगा टीचर को। अब जो टीचर हैं बेसिकली वो तो पता है आपको कि हमारे पास प्रोफेसर हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं सिविल में भी। कोई ये सॉइल के प्रोफेसर हैं, ये सर्वेइंग के हैं, ये टीचर हैं, ये हमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ाते हैं। तो ये अब आप पे है कि जो टीचर आपके सामने बैठा है वो किस सब्जेक्ट का है। अगर तो वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने उसको सेटिस्फाई कर लिया है, तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज है, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अगर आप उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी दे पाते तो इतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर करता है कि आपके कॉन्फिडेंस कितना है। बेसिकली इंटरव्यू में वो ये भी कहा जाता है कि क्वेश्चन एंड आंसर की, ठीक है, आपने जो आंसर किए हैं क्वेश्चन के उनकी वेटेज होती है, बट इससे ज्यादा जो है वो आपको कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि आपने किस तरह आंसर किया। जो आपका वे है वो जो आपका वे है इंटरेक्ट करने का, वो मैटर करता है उसमें। थर्ड जो बंदा होता है डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आपसे डिपार्टमेंट के रिलेटेड कुछ चीजें पूछता है कि आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट में क्या सिस्टम चलता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और इसके लिमिट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ जो होते हैं अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी कह देते हैं कि आप तो गवर्नमेंट जॉब में आना चाह रहे हो तो इसमें करप्शन है, ये है, वो है। सो इस तरह की चीजें हैं। वो जब आप लोग इस चीज पे आएंगे इंटरव्यू पे तो वो आपको बहुत सारे इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लाइक आम से मिल जाएंगे, कुछ और भी आपके सीनियर्स होंगे उनसे आपको ये आंसर मिल जाएंगे। सो आप इंटरव्यू के बाद आप सिलेक्ट हो जाते हो। अब सिलेक्शन के बाद एक और जो है ना इशू वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है कि यार मैंने तो इस डिपार्टमेंट में आ गया हूँ, इसका जो वे ऑफ वर्किंग है मुझे वो पसंद नहीं है। अब ये डिपार्टमेंट है, इसमें तो पब्लिक डीलिंग है, मेरे ऊपर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं जिस तरह लोकल गवर्नमेंट में, वो मुझे डिक्टेट करते हैं हर चीज के लिए। तो मुझे इसके जो वे वर्किंग पसंद नहीं है, ठीक है। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वहां पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैंने मुझे मेरी पोस्टिंग इन्होंने पत्थरलैया में कर दी है, वहां पर तो जंगलात हैं, मैं तो लाहौर में रहना चाह रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहना चाह रहा हूँ, तो मुझे बड़े शहर में
शहर छोड़ना पड़ रहा है, वहां पर फिर आना है, घर से बहुत दूर है, इस तरह के इशूज आते हैं। ठीक है, जो फेडरल के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये इशूज आते हैं कि जैसे मैं अब ये लाहौर डिवीजन से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वो लोग अगर उठाकर कराची भेज दें, मीन्स जो इनका रूरल सिंध है वहां भेज दें, मुझे केपीके में भेज दें, तो थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। और एक इशू इसमें और भी आता है कि लाइक जिस तरह हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जिन पे हमारी हायरिंग तो होती है कि हम लोग सिविल इंजीनियर्स के तौर पर, लेकिन वहां पर हमारा काम कोई नहीं होता। लाइक औकाफ का डिपार्टमेंट है, कोई टेक्निकल वर्क नहीं होती है। कुछ लोगों को इशूज ये भी आते हैं कि हमारी लर्निंग नहीं हो रही है। एक्चुअली वो हमारे यहाँ जो ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, स्पेशली पंजाब की, वो जॉब्स हैं मैनेजमेंट की। उसमें आपको चीजें मैनेज करना आनी चाहिए। उसमें आप हर मतलब कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आप क्या करवा लोगे, आप रोड करवा लोगे, आप बिल्डिंग करवा लोगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जी ठीक है स्ट्रीट्स का वर्क करवा लोगे, सीवेज का काम हो रहा है आप उसको सुपरवाइज कर लोगे, देख लोगे। तो इससे बढ़ के उन डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है। अगर उन डिपार्टमेंट में कुछ और है तो वो है, ठीक है, आपको वहां पर जी हजूरी करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपकी एक रिस्पेक्ट बनती है और लोग आपको जानते हैं, आपके अच्छे लिंक्स बनते हैं मिनिस्ट्रीज में। लाइक जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबलीज हैं, वहाँ के आपके रिलेटेड एरियाज के जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, उनसे आप कांटेक्ट में रहते हो, ठीक है, आप उनके टच में रहते हो, वहां पर आपको ये चीजें मिलती हैं। अब मैं बात करता हूँ वापडा की, जहाँ मैंने ज्वाइन किया। सो वापडा ज्वाइन करना आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग मेरे लिए कि मैं यहाँ पे आया हूँ। वापडा में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो है हमारे पास यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट है, मोहम्मद डैम। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ 309 बिलियन रुपीज एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 800 मेगावाट है। एडिशनल 1600 एकर्स को ये पानी देगा, उसको सैराब करेगा, उस पर इरिगेशन जो है वो लोग कर सकेंगे। तो मेगा प्रोजेक्ट्स पे आके ये होती है कि आपकी लर्निंग होती है, आपको फील होता है कि आप एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बैठे हो, आपकी रीडिंग से चलती रहती है, आप चीजों को ऑफिस में बैठ के रीड करते हो, आप जाते हो साइट पे जाकर देखते हो कि हाँ जी एज इट इज चीजें हो रही हैं। डैम बना हुआ देखना और डैम को बनते देखना बहुत दो डिफरेंट चीजें। ये चीज मैंने आज मैं एक दोस्त से बात कर रहा था कि मैंने जो मेरा पहला प्रोजेक्ट किया था बिजली पावर प्लांट, वो भी एनर्जी प्रोजेक्ट था, लेकिन आपको पता है कि वो थर्मल पावर प्लांट था, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है एलएनजी से, लाइक जिसको आप सीएनजी भी कहते हैं या नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस हमने जो कतर से ली है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो बेसिकली वहां पर हम गैस जला के बिजली बना रहे हैं, क्योंकि में बहुत ही महंगी पड़ती है। और कोविड की वजह से जो है महंगाई और ये सब चीजें कहाँ तक पहुंची हैं, तो वो अब हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हमने वो प्रोजेक्ट तो लगा लिए हैं 4-5, लेकिन पाकिस्तान देखे ना हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कंट्री के लिए तो वो इतनी बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं। तो डैम से हम लोग चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उससे ज्यादा है, लेकिन इसका टर्नओवर भी उससे बहुत ज्यादा है। अब डैम की लाइफ, हमारा जो मोहम्मद डैम है इसकी लाइफ 100 साल है, 100 ईयर्स ऑफ इसकी लाइफ है। और ये 10 ईयर्स में अपने जो है जो इसके एक्सपेंसेस सारे उनको क्लियर कर देगा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका प्रॉफिट जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास लर्निंग है, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो बेसिक इंजीनियरिंग की जॉब है वो मैं समझता हूँ कि ये वापडा की जॉब है, जो पाकिस्तान में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों में भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा, उनमें बहुत कुछ है। अब वापडा जो चीज लैक करती है वो लैक करती है लाइक कि ना आपकी पब्लिक डीलिंग। कहीं भी आपकी जो है ना एक एरिया में वैल्यू बनती है पब्लिक डीलिंग से, तो वापडा जो है यहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग जो है वो उससे आप दूर रहते हो, लेकिन आप अपने जो है टास्क, अपनी इंजीनियरिंग, अपनी फील्ड, उसके आप बहुत ही क्लोज रहते हो। लेकिन बाकी जॉब्स में ये होता है कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, उनमें ये है कि आपको चीजें मैनेज करनी आती हैं, आपको थ्रू थिक एंड थिन गुजरना पड़ता है,
आप लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हो हर चीज के लिए, और वहां पर कुछ चीजें और भी होती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मतलब कि आप देख रहे हैं आपकी कहीं पे जॉब होती है आफ्टर स्ट्रगल, तो आप ये चीज बिल्कुल ना सोचें कि यार अब वो मुझे वो नहीं मिला। देखिए, परफेक्शन जो है ना इंसान की लाइफ में वो कभी नहीं आ सकती, और इंसान जो है वो है भी ना शुक्र है, इसको करे करिए ना शुक्र है। तो अगर आपको एक चीज उसमें नहीं मिल रही लेकिन बाकी बहुत कुछ मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि ना कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको चाहिए कि आप पहले एक चीज सोच लें कि मेरे लिए ये प्रेफरेंस है, मुझे अपनी इंजीनियरिंग के बाद मेरे लिए प्रेफरेंस क्या है कि मैंने पब्लिक डीलिंग में जाना है, मेरा एक नाम हो, एक दबदबा हो, ठीक है, जो कि सिविल इंजीनियर्स को बहुत कम मिलता है। वो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिस तरह पुलिस वगैरह है वहां पर ज्यादा पाई जाती है। तो ये है कि अगर आप इस तरह की जॉब चाहते हो तो फिर आप लोग वहाँ उस हिसाब से तैयारी करो चीजों की, अपना माइंड उस तरह बनाओ। और अगर आप चाहते हो कि आपको सुकून वाली जॉब चाहिए, अम, और आप मतलब कि कोई कोई आपसे आके ये ना पूछे कि हाँ भाई ये फलान जगह पर वहां पर जो है ब्रिज उसके नीचे से ये मामला हो गए हैं, ब्रिज गिर गया है या वो जो रोड है वो क्यों टूट गया है, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। खैर मैं इस चीज को यहाँ पे समअप करता हूँ कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो है इंटरेस्ट वो आइडेंटिफाई कर लें, अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई कर लें कि हम चाहते क्या है, हमने करना क्या है, ठीक है। तो खुद को तैयार करें उसके हिसाब से। और बाकी आप लोग इंशाल्लाह कमिंग ईयर में पास आउट हो रहे हैं, तो बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। अगर किसी को मुझसे कोई चीज़ पूछनी है, कोई क्वेश्चन है किसी के, तो अभी भी कर सकते हैं, और इसके बाद भी वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज मुनीब। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I'm Arfa Farooq, General Member of ICE. Moving on towards our Q&A session where our respected speaker will be answering your questions and queries. So if any one of you is having a question, raise your hand. There is an option on your screens. I will allow you one by one. Go ahead. अस्सलाम वालेकुम, कैसे भैया आवाज आ रही है? जी जी वालेकुम सलाम, जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मुनीब इनसे बोलें कि अटेंडेंस से बोलें कि मतलब जिसका भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज करके तो पोस्ट ले, वो अरफा इनको अलाउ कर रही हैं, तो इनसे वन बाय वन लेते जाएं। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I am Ahmed Ijaz from 19th session. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में बेसिकली ये कहा जाता है कि रेफरेंस मैटर्स अलॉट, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, व्हाट मैटर्स अ लॉट? सर कहा जाता है कि आपका अगर रेफरेंस अच्छा हो तो आप किसी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में आपको ये कहना चाहूंगा कि ये लोग बड़ा ही गलत कहते हैं।
प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि हाँ भाई, जैसे फॉर इंस्टेंस कि जी वो फलां बंदा कहता है कि मेरा मामू है वो तो आर्मी में तो जनरल है, वो भाई फलां मेरे मामू ब्रिगेडियर हैं, मेरे चाचू जो हैं वो डीजी नैब है, तो वो तो बस मेरे यहाँ से पास आउट होना है, फिर देखना कि मेरे सामने से लाइन लग जानी है सीट्स की। सबने हाँ जी डिपार्टमेंट से कहना कि सर आप कहाँ आना पसंद करेंगे, तो भाई ऐसा कोई चीज रेफरेंस बेस्ड जॉब होती है वो आपकी प्राइवेट फर्म्स में होगी, और प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्टर में बहुत ही बुरे हालात हैं। अगर कोई बच्चा मुझे आज कहता है ना मैंने कॉन्ट्रैक्टर में जॉब करनी है, तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखूंगा कि बिल्कुल नहीं करो। आप लोग खुद को प्रिपेयर करें, आप लोग खुद को प्रिपेयर करें इनके लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है, जहां पर आपको आगे एक इज्जत वाली नौकरी मिले, जहां पर आप इज्जत से बैठ सको, ठीक है, एटलीस्ट आपके सामने एक ऑफिस बॉय हो जो आपकी बात सुने। वहां पर आपको वो साइड पे फेंक देती हैं, सैलरी जो होती है आपकी एक मजदूर से कम होती है, और अच्छा खासा रगड़ा देते हैं जी, और फिर कहते हैं कि आपकी लर्निंग हो रही है। जहां तक मेरा मानना है, ऐसी चीज में कोई लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग जो होती है वो आपकी होती है कि आप एक अच्छे रैंक पे रह के चीज़ों को मैनेज करना सीखें, लोगों के साथ मिलें, मीटिंग्स अटेंड करें, जो हमारा काम है, ठीक है। हमारा नहीं काम है कि हम एक मजदूर की तरह साइट पे खड़े रहें, ठीक है, आप जाएं साइट को देखें, वहां पर आप एक राउंड लगा के आ जाएं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई जो भी मिलना है वो आपको इससे जो है रेफरेंस से कुछ नहीं मिलना, आपको अपनी मेहनत से मिलना है, आपकी लक से मिलना है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जो है नसीब और आपकी जो मेहनत है वो आपके रेफरेंस से कहीं ज्यादा मैटर करती है। सो ये सब बकवास बातें हैं कि रेफरेंस से जॉब मिलती है। हाँ मिल जाएगी आपको किसी जो है वो लाइक प्राइवेट जो है जॉब मिल जाएगी आपको, लेकिन उसका फायदा आपको बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। जी प्लीज नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें आफ्टर ग्रेजुएशन ब्रेन ड्रेन को प्रेफर करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब को? आफ्टर 5 ईयर हम अपने आप को ग्रोथ डोमेन में कहाँ देखते हैं? ग्रोथ आप किस सेंस में कह रहे हो? लर्निंग? एज अ मोर हम वेल्थ भी अच्छी कमा सकें और अपने आप को वेल ग्रूम भी देख सकें, इस पर्सपेक्टिव से सर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपने अपने आप को वेल ग्रूम्ड और वेल्थी देखना चाह रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, अब्रॉड चले जाएं। पाकिस्तान में सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में जो है वो ना पैसा है और ना आपकी वो खास इज्जत है, ठीक है। मैं अगर फ्रेंकली बात करूं तो कॉन्ट्रैक्टर में आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ ना, फर्स्ट 5 इयर्स में तो आपकी सैलरी जो है वो किसी भी सूरत में 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। और आजकल के दौर में जो है वो 1 लाख जो है वो समझ लें कि एक बंदे का मंथली जो है वो एक्सपेंडिचर में आ जाती है। अगर बंदा सिटी में रहता है, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, उसके पास गाड़ी है, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो 100K से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर तो आपका हो गया साइड पे, ठीक है। और जो है दूसरा क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में ये है कि आपको कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी, आपकी सैलरी अच्छी होगी, मीन्स के अच्छी से मीन्स ये है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब आपकी कुछ बचत करवा देगी, लाइक इन फॉर्म ऑफ फैसिलिटीज, जो आपको चीजें वहां पर बाई करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट जॉब में आपको वैसे ही मिल जाती है। जैसे कि अब मैं वापदा में हूँ तो मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। अब मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो मुझे जो है वापदा उसका, मेरे घर का जो रेंट है जो मैं यहाँ पे मैंने एक्वायर किया वो वापदा पे करता है। इस ऑलमोस्ट के इलेक्ट्रिसिटी और ये जो दोनों फैसिलिटीज मिला के ये 50K चीजें ऊपर जाती हैं, और ये मेरी सैलरी से बिल्कुल हटती हैं। और सेकेंडली ये है कि आपको गाड़ी मिल जाती है जो आपको परचेज की करनी पड़ती है। गवर्नमेंट जॉब में फैसिलिटीज हैं, और अगर आप कहें कि मैंने पैसा कमाना है गवर्नमेंट जॉब से, तो वो फिर आपको उसके लिए क्या कहते हैं कि थोड़ा सा अपनी जमीर को मारना पड़ेगा, और कि चलता है कहते कुछ क्या कहते हैं वो पैकेट्स आपको टेबल के नीचे से ले लेने पड़े, आप ले लेंगे और फिर आपके पास पैसा ही पैसा है। अगर पाकिस्तान में रह के आपने बीइंग अ सिविल इंजीनियर पैसा कमाना है, तो आपको अपना बिजनेस करना चाहिए, और जो बिजनेस है वो आपका अपना स्टार्ट करें प्राइवेट सेक्टर से, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, उसमें मेहनत करें। हाँ, और अगर आपने मतलब कि पाकिस्तान में इसकी ये तीनों चीजें कवर हो गई हैं,
प्राइवेट सेक्टर की जॉब, गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस। यहाँ पर पैसा कमाने के लिए जो है बेस्ट चीज वो बिजनेस है। सरकारी जॉब में आपके पास जो है, गवर्नमेंट में बस इज्जत है, इतना पैसा नहीं है। और जो है आप अगर आपको जैसा कि मैंने जॉब से ही कमाना है तो आपको फिर थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। यूएई की तरफ बिल्कुल नहीं, आप यूरोप जाएं, अच्छी कंट्री में जाएं, वहां पर जाके आप अपना प्रिपरेशन करें, मतलब वहां पर जाके अपनी जॉब पहले गेन करें, और वहां पर इंशाल्लाह आपको हैंडसम जो है वो सैलरी मिलेगी, एक अच्छी अमाउंट मिलेगी। जी नेक्स्ट। In which country we should go? मैं अभी जो हालात हैं, ठीक है, हालात के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। मैं अभी के लिए जर्मनी प्रेफर करूंगा, मेरे बड़े भाई भी वहाँ पे होते हैं, उनका अपना बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग जर्मनी जाएं, आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाएं। ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ट, ठीक है। वहां पर आपको सिविल इंजीनियरिंग की जॉब अगर नहीं मिलती तो कुछ और ऐसी चीजें हैं जो करके आप लोग वहाँ पे एक अच्छी खासी, मतलब कि अपना एमएससी कंटिन्यू कर सकते हो साथ, और साथ पैसे भी कमा सकते हो। जी नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि गवर्नमेंट यानी कि जॉब्स में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, जो अफसर बनता है उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। क्या ये जी दुरुस्त है बिल्कुल, या सही है? आपकी बात एकदम ठीक है। करप्शन तो यहाँ पर जो करने वाले हैं उनके लिए बहुत है, और जहाँ पर करप्शन नहीं होती लोग करने के बहाने भी रास्ते भी ढूंढ लेते हैं जिन्होंने करनी होती है, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कब्र के जो सांप बिच्छू हैं उनसे डर नहीं लगता बिल्कुल भी, ठीक है, तो आप करप्शन कर सकते हैं। इसमें तो कोई नहीं है कि ठीक है आपकी जिंदगी ये बड़ी आसान हो जाएगी। एसडीओ रैंक पे आपके पास फॉर्च्यूनर होगी, ठीक है, आपके पास एक तरह का घर होगा डीएसए में, और आप बड़ा एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, और किसी को आपसे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो करप्शन होती है ना सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में, लाइक पोल्यूशन डिपार्टमेंट में, वहां पर आप उनसे कमीशन लेते हो पूरा काम करवाने के बाद, ठीक है, और आपका जैकपॉट तब लगता है जब आप काम ही नहीं कराते और जो है वो अमाउंट बांट ली जाती है। तो ये जो है करप्शन जो है अगर आपने करनी है तो वो आप पे डिपेंड करता है, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन एज यंगस्टर जिस तरह की अभी लॉस आ रही हैं, पहले तो थे प्रमोटी एस्टर्स होते थे, पहले उन्होंने 20-20 साल सब इंजीनियर रहे होते थे, लेकिन अब एक यंग ब्लड आगे आ रहा है। तो होप है, एक उम्मीद है कि इस ट्रेंड को खत्म किया जाएगा। ये जो 3% का टैक्स चलता है ना हमारे डिपार्टमेंट्स में, स्पेशली पंजाब के डिपार्टमेंट्स में, तो उसको उम्मीद है कि ये लोग चेंज करेंगे। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बिल्कुल इस चीज को उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम लोग पैसे नहीं ले रहे, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल हमारे पास ऐसे ऑफर्स लेके ना आए। हमारी एक सैलरी, ठीक है, 1 लाख तक हमारी सैलरी, 1 लाख से ऊपर भी है, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये है कि आपके नसीब का जो है वो आपको मिल जाना है। अब वो डिपेंड करता है कि आप लेते किस तरह हो, सीधे रास्ते से ले लो, उल्टे रास्ते से ले लो, वो मिलना ही मिलना है आपको। जी प्लीज नेक्स्ट। ये एक और क्वेश्चन है कि जॉब अपॉर्चुनिटी सिविल इंजीनियरिंग के लिए आगे कौन कौन सी हैं, और जीपी आगे जाके मैटर करता है कि नहीं? जी देखिए, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो पीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ना, इनका टोटल जो मेरिट बनता है वो बनता है 190 मार्क्स का। लाइक आपका 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। फर्स्ट जो पहला स्टेप होता है कि सीट का तो पेपर होता है, वो पेपर के 100 मार्क्स होते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं उसमें उसकी वेटेज 50% काउंट करते हैं, ठीक है, और 40 मार्क्स होते हैं आपकी एजुकेशन के, मैट्रिक से लेके आपकी इंजीनियरिंग तक पीएससी तक। आउट ऑफ 40 जिन लोगों का जीपीए बहुत अच्छा होता है, जिनको थ्रू आउट वो टॉपर्स में रहे होते हैं, उनके आउट ऑफ 40 आ जाते हैं, ठीक है। जो कुछ लड़के होते हैं जिनका थोड़ा सा टॉपर से जो निचला लेवल होता है उनके 39 मीन्स के मैक्सिमम डिफरेंस जो है एब्सोल्यूट मार्क्स में आपका जीपीए डालेगा तो वो 2 से 3 मार्क्स का डाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं डाल सकता। अगर आप अपनी वो डेफिशिएंसी टेस्ट में और इंटरव्यू में कवर कर जाते हो तो वो आप समझो कि आपका जीपीए मैटर नहीं करता। हाँ, एक इम्प्रेशन की बात होती है कि आप इंटरव्यू देने गए हो तो आपका जो इम्प्रेशन है वो कैसा पड़ेगा, यहाँ पे चीजें आती हैं। और बाकी जो प्राइवेट जॉब है उसके लिए तो ठीक है, कुछ फर्म्स हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि 3.5 से ऊपर सीजीपी होनी चाहिए, वो जस्ट इसीलिए कि जो है ना सिचुएशन वो कम हो जाए थोड़े से, मतलब कि अगर उन्होंने सीट्स अनाउंस की हैं तो
कंपैरेटिवली कम लोग उनके लिए आए तो उनको जो है वो इंटरव्यूज कम लोग करने पड़े, लाइक इतना जीपीए मैटर नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम हाँ सर। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इनको जवाब दे दूँ। अगर आपने एमएस करने का सोचते हैं, स्कॉलरशिप करने का सोचते हैं नेक्स्ट, तो उसके लिए आपका जीपीए वाकई ही मैटर करेगा। जी अभी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी जॉब्स नहीं होती जितने कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पर ईयर पास आउट होते हैं, तो आप जी नहीं जी समझते कि ये थोड़ा डीमोटिवेटिंग होगा स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें ये कहते रहा कि आई नो कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बिट डीमोटिवेटिंग होगा कि जो उनको कहा जाए कि प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ ना जाएं और कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही आएँ। तो हर एक शायद वो अपॉर्चुनिटी अवेल ना कर सके। तो आपका माइक ऑफ है। जी प्लीज जरा दोबारा बोलिएगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते या उनको जॉब नहीं मिल पाती गवर्नमेंट, तो उनके लिए डीमोटिवेटिंग चीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है। आप ये बात कर रहे हैं? इस समय ये कह रहा हूँ कि जिससे हमें पता है कि सीट्स जो होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में लिमिटेड होती हैं, और अगर हम बिल्कुल हाँ। स्टूडेंट्स को ये बोलें कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो बस यही होनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर ही होनी चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर पर डीमोटिवेट नहीं हो जाएंगे वो ज़्यादा, क्योंकि हर एक तो वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, बात ये है कि मैंने फर्स्ट आपसे जो बात की थी मैंने ये कहा था कि देखिए मैंने आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ठीक है, कि मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करता। लाइक अगर आपको ठीक है अगर आप उस तरह के हालात फेस कर सकते हो तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर में जॉब कर लें। बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग जो है ना, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्टर की जॉब को कहते हैं रगड़ा, कि ये फलां बंदा रगड़ा खा रहा है वहां पे, इसने 4 साल कॉन्ट्रैक्टर का रगड़ा खाया है, तो ये बहुत ही ना वो हो गया। जहां तक बात है नंबर ऑफ सीट्स की, तो भाई हर जगह सीट्स लिमिटेड है। जो हमारे सिविल के लोग हैं वो उनकी तो फिर भी अल्लाह की रहमत है कि आए दिन सीट्स अनाउंस होती हैं, साल में 2 दफा ऐड आते हैं, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो भी लिमिटेड है। आपके पास सीट्स जितनी भी आ जाएं, 100 सीट्स आई आपके पास, फिर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है 3 to 4 thousand के दरमियान में। अगर 25 आई हैं फिर भी इतने हैं। लाइक एक लिमिटेड हमारे पास ना उनकी नंबर्स ऑफ बंदे हैं सिविल इंजीनियर्स। अगर आप इसके बरक्स इलेक्ट्रिकल में देखें तो उनकी 10 सीट्स आती हैं, तो वहां पर कम से कम 15,000 कैंडिडेट होते हैं, उनमें ज्यादा हमसे ज्यादा सैचुरेशन है। लेकिन ये बात है कि जो कमीशन वाले हैं वो अपनी तरफ से एक कंपटीशन करवा के जो बेस्ट हैं उनको आगे लेके आते हैं। तो ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है, मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट की, मैंने सबसे पहले बात की थी कि आपके अंदर जो अपनी स्किल्स हैं, जो आपको टैलेंट है, आप इसको देखिए कि आप क्या करना चाह रहे हो, अपने इंटरेस्ट को देखिए। अगर तो आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप इस तरफ आए और फिर कश्तियां जला के आए, मैं ये बात कर रहा हूँ। और अगर आपका इंटरेस्ट किसी और जगह पे है तो आपको वो करना चाहिए। बिल्कुल जी। नेक्स्ट। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम मुदस्सिर नईम फ्रॉम 19 सेशन। मेरा सवाल ये था कि हम अपनी डिग्री को यूज़ करते हुए बिजनेस की तरफ कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखें, आप एक सिविल इंजीनियर हो, आपके पास आपको एक पीसी नंबर अलॉट होगा। फर्स्ट ईयर में तो आपको ना जब ग्रेजुएट होने के बाद आपको सुपरवाइजरी भी अलॉट होगा। सुपरवाइजरी एक ऐसा पीसी नंबर होता है जो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को मिलता है। अगर हम मार्केट में आए तो हमारे यहाँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, हमारे यहाँ जो भी सिविल इंजीनियरिंग का बिजनेस है वो सारा इसके थ्रू हैंडल होता है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से कोई कंपनी रजिस्टर होकर आती है तो उसको आगे वो एलिजिबल होती है किसी भी सिविल वर्क में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो आके ना कंप्लीट कर सके, बिडिंग कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपका पीएससी नंबर आपको अलॉट होगा। आप
सीधे चले जाएं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऑफिस, अपना पीसी नंबर लें, वहां से अपना कार्ड रिसीव करें। कार्ड रिसीव करने के बाद आप बीइंग एन इंजीनियर आपको बहुत सारी एग्जाम्पशंस मिलेंगी। लाइक अगर एक बंदा उठ के अपनी कंस्ट्रक्शन फॉर्म बनाता है तो उसके लिए 100 फॉर्मेलिटीज हैं कि आप इतना बैलेंस शो करो बैंक में, ये वो। लेकिन एक इंजीनियर अगर अपनी फॉर्म बनाता है उसे बोलते हैं इंजीनियर्स ऑन फॉर्म। तो आप उसके उसमें उसको बहुत सारी एग्जाम्पशंस मिलती हैं। आपको बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है, आपको सिंपल अपना अकाउंट नंबर देना होता है उसमें, ठीक है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज उनको पूरा करें। आई थिंक 15,000 C6 कैटेगरी की फी है, जिसमें आप 6 करोड़ तक का यानी कि 60 मिलियन तक का, 65 मिलियन तक का आप ना उसमें कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे साल में 65 मिलियन तक ये काम करने हैं। इट मीन्स कि अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 65 मिलियन से कम है तो आप ले सकते हो। ये C6 की बता रहा हूँ जो सबसे इनिशियल है। लेकिन एक सिविल इंजीनियर जो है उसको एग्जेम्पशन इससे भी है, वो डायरेक्टली C5 करवा सकता है। तो C5 जो है उसकी लिमिट जो है वो आपके पास आई थिंक 10 मिलियन तक होती है। हाँ जी, वो आप 10 मिलियन या 12 मिलियन तक का आप कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में ले सकते हो, या फिर आप 10 मिलियन के 2, 3, 4, 5 कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस में आना चाह रहे हो तो आपको बिल्कुल ये करना है कि अपना पीवीसी नंबर जब आपका बन जाता है, आपको अपने नाम पे, मतलब कि बीइंग एन इंजीनियर खुद एक उसको इंजीनियर जॉन फर्म का नाम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आप एक नाम डिसाइड करेंगे कंपनी का, उसकी एक स्टैम्प बनवाएंगे, ठीक है। उसका फिर बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, फिर उसका एनटीएन बनेगा जो आपके नाम से लिंक हो जाएगा। एनटीएन बनने के बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे और एक फॉर्म मिलता है, इनकी साइट पे होता है, पीसी की साइट पे, वो फॉर्म डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके उसको खुद ही फिलअप करके उसके साथ एक एफिडेविट लगता है, वो लगा के आप अपनी वर्किंग करके सीधे चले जाएं वहां पर इंजीनियरिंग काउंसिल के ऑफिस, वहां पर जाकर फाइल सबमिट कराएं। वहां पर आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी कि फर्म भी आपकी है, इंजीनियर भी आप खुद हो। जब आपकी एक फर्म जो है वो रजिस्टर हो गई है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ, तो पाकिस्तान में कहीं भी सिविल का काम आ रहा है तो आप उसके लिए कंप्लीट करने के लिए एलिजिबल हो। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, कुछ लाइक पैसे भी लगाने पड़ेंगे पास से, क्योंकि बिजनेस है ना। इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा तो नहीं लगानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज के आपको कोई और काम नहीं मिल रहा, तो आप अपने किसी लाइक नजदीकी किसी रिलेटिव का या किसी दोस्त के का ही घर बना देते हो, ठीक है, लाओ यार मैं बना के देता हूँ, ठीक है। जो भी है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो खुद बेयर कर लें, उसमें आपका 10% प्रॉफिट रख ले, आप इसको एक ट्राई दें, ठीक है। अगर तो आप ऐसे स्टार्ट करते हो प्राइवेट सेक्टर से तो उसमें आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर गवर्नमेंट से स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में तो गवर्नमेंट की कुछ चीजें हैं कि आपको पीसी से जो आपको लाइसेंस मिलता है फर्म का, उसके बाद आपको फिर से डिपार्टमेंट के साथ ना इन्वेस्टमेंट करवानी पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी एक फीस होती है, किसी डिपार्टमेंट की 50,000 है, किसी की ज्यादा है इससे भी, तो वो आप करवा के इन्वेस्टमेंट करवाते हो। उसके बाद जब टेंडर्स आते हैं जिनमें अपने पार्टिसिपेट करना होता है, तो उसमें टेंडर फी होती है, वो टेंडर फी आप देते हो। टेंडर फी के अलावा अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है मतलब कि 10 मिलियन है, तो 2% या फिर 5%, 2% और 5% के हिसाब से आपको CDR बनवानी पड़ेगी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बिडिंग में। लाइक वो सिक्योरिटी होती है कि हाँ जी अगर ये बंदा गलत बिडिंग नहीं करेगा, अगर ये गलत बिडिंग करेगा तो उसकी जो CDR है वो लोग वो जब्त कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आते हो तो उसके लिए आपको कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा भी पड़ सकती है। लाइक अगर आप नॉर्मली शुरू करना चाह रहे हो तो आप 10-20 लाख से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप खाली हाथ से भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। जी नेक्स्ट। अच्छा, ये माइक तो जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है ये सोच करें कि मतलब कोई दूसरी बार अभी ना है, वो लास्ट में किसी ने दोबारा पूछना है वो लास्ट में, सेकंड टाइम मतलब आपको किसी को नहीं देखना। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ
मैं ये पूछना चाह रहा, हम फाइनल ईयर में पीपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे जहाँ हम सॉरी आपके यहाँ पे बहुत काफी आ रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है? जी जी हेलो जी 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 भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जी जी अली फाइनल ईयर जी जी क्वेश्चन करें आप प्लीज। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम फाइनल ईयर में जो है पीपीएससी की तैयारी कैसे कर रहे हैं कि हम ग्रेजुएट होते ही फौरन जो है इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकें और क्लियर कर सकें। आपको मैं बताता हूँ इसका जो तरीका मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर तो आप अभी तो बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की, क्योंकि आपके पास जो है टाइम है, आपके पास टीचर्स अवेलेबल हैं, आपके पास ग्रुप है, आप लोग सब एक जगह पे रह रहे हो। तो लाइक इंजीनियरिंग में ये माहौल होता है कि यार उससे समझ लो, उससे समझ लो, नहीं आ रहा तो उससे पूछ लो, उससे देख लो। तो इसी तरह काम चलता है आपस में, ग्रुप में बहुत कुछ हो जाता है, मतलब कि चीजें वगैरह काफी क्लियर हो जाती है, किसी के पास जाना नहीं पड़ता। तो अगर तो ग्रेजुएट होगी तो आप घर चले जाओगे, फिर आपको अकेले को सर मारना पड़ेगा, तो अपना पड़ेगा चीजों के लिए। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप आप फर्स्ट ऑफ ऑल ना पीपीएससी के पास पेपर्स की बुक मिलती है सिविल इंजीनियरिंग के, आप वो पेपर्स देखें, उनका पैटर्न देखें, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं आप उनको उस पैटर्न के अकॉर्डिंग रीड करना स्टार्ट करें। साथ में जो मैंने बुक 3-4 दफा रिपीट की है इसमें, कुर्मी एंड गुप्ता की बुक है सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल टाइप, ठीक है। आप वो बुक ले लें, उसमें से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं आप वो करें। आपका थोड़ा सा ना माइंड आपका जो है ना चीजों को देखने की आपकी एनालिटिकल अप्रोच हो जाएगी कि हाँ जी मैंने कैसे करना है। अब जब आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे पीपीएससी की, आप वो बुक से स्टार्ट ले लें। नेक्स्ट मेरी फेसबुक आईडी है, ठीक है, आप लोग वहां पे कांटेक्ट करें, तो मैं आपको इसमें डिटेल में हर चीज बता दूंगा, ठीक है। वो आपने कैसे करना है, फिलहाल आप स्टार्ट के लिए आप इस बुक से स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट अच्छा कैसे भाई, इस पे अस्सलाम वालेकुम मोस्टली सर। हमारे पास एक क्वेश्चन। हाँ हेलो अहमद, अपना माइक ऑफ करेंगे। जी कैसे भाई, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है जी फुल्ली। अच्छा कैसे भाई, मोस्टली स्टूडेंट्स का जब हम न्यू आए थे, अभी तो फाइनल ईयर पास आउट होने वाले हैं, तो मोस्टली का ये सवाल होता है कि मतलब आगे फील्ड में जाके सीधे पे क्या मैटर करता है, और एक दूसरा हम प्राइवेट में ले लें, गवर्नमेंट में ले लें, क्योंकि गवर्नमेंट में तो आ जाता है 2.7, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो बाकी एक एक सेक्शन होता है सबका मेन, मतलब जितने भी कवर करते हैं उनका यही ना मतलब माइंड। और दूसरी चीज ये है कि अभी भी हम सोचते हैं थर्ड ईयर वाले सेकंड ईयर वाले कहते हैं कि पीपीएस से जो है ना तब काफी है, मोस्टली लोग काफी भी होता है तैयारी करके मतलब देते ही नहीं है। तो मैक्सिमम तो वो लोग आते हैं जो तैयारी के बगैर शायद आ रहे होते हैं, कुछ लोग जो तैयारी करके प्रॉपर जिस तरह बता रहे हैं तो पता चला। तो ये परसेप्शन है कि मतलब काफी टफ है और उसको क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सीजीपीए की। सीजीपीए जो है आपका फर्स्ट जॉब के लिए लोग सीजीपीए देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में, सेकंड जॉब के लिए आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, तो आपने क्या सीखा है, आपकी लर्निंग क्या है, ये चीज काउंट होती है। सिर्फ फर्स्ट जॉब तक आपका जो है ना एक ब्लैंक इंप्रेशन होता है कि आपको जज करने के लिए जिस तरह होते नहीं वो आंटी अंकल होते हैं जो आपके दूर नजदीक के, वो पूछ लेते हैं हाँ भी आपके बेटे के मार्क्स कितने आए थे मैट्रिक में, आपके बेटे के एफएससी में कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो वो बस आपको इसलिए में जज करते हैं सीजीपीए से कि हाँ जी ये बंदा किस लेवल का है, ठीक है। हालांकि जीपीए वो वाला स्केल नहीं है किसी की भी इंटेलिजेंस को या किसी के भी लेवल को ना मापने का वो स्केल नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम इस तरह का है कि हम लोग जज इस चीज से करते हैं शुरू से लेके हाँ भी आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, आपका जीपी कितना, जीपी कितना है। तो जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है वहां पर लाइक वहां पर आपकी फर्स्ट जॉब के लिए जीपी मैटर करता है। गवर्नमेंट जॉब में जीपी जो इफेक्ट करता है वो आपकी जो ओवरऑल मार्क्स है उन पे इफेक्ट करता है। लाइक
अगर एक बंदा जिसका अच्छा जीपीए है, दोनों ने बराबर स्कोर किया है, एक बंदे का जीपीए 3.5 है, एक का जीपीए 2.7 है, लेट्स सपोज दोनों ने एग्जाम दिया, दोनों के सेम मार्क्स आए, दोनों के इंटरव्यू में सेम मार्क्स लगे, तो जब एजुकेशन की बारी आएगी तो वहां पर वो बंदा नंबर ले जाएगा, उससे 1 या 2 नंबर ऊपर चला जाएगा। लाइक आउट ऑफ 190 जो बंदे जिसका सीजीपीए 3.5 है उसके 145 है, और जिसका सीजीपीए 2.7 है उसके 143 है। तो सिलेक्शन किसकी हुई? जिसका सीजीपीए 3.5 है। लेकिन अगर 2.7 वाला उसको बीट करता है टेस्ट में वो उससे 6 नंबर ज्यादा ले लेता है, तो इट मींस के 6 नंबर टेस्ट में लिए तो टोटल 190 में से उसके वो 3 बन गए, 50% वेटेज होती है, तो जो वो 2.7 वाला है वो उसको बाईपास कर देगा, वो ऊपर आ जाएगा, वो 146 पे आ जाएगा। तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब में तो अगर आपका जीपीए कम भी है तो आप उसको ओवरकम करने के लिए आपको इंटरव्यू में 1-2 नंबर ज्यादा लेने हैं, और आपको एक क्या कहते हैं टेस्ट में उससे 2-4 नंबर ज्यादा लेने हैं ज्यादा जीपीए वाले से, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस उससे ज्यादा है इस मामले में। सेकंड आपने क्या पूछा था, प्लीज जरा मुझे बताइएगा, मुझे भूल गया। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब काफियों का परसेप्शन होता है, मेरा भी पहले था, खैर अभी नहीं है, कि पीपीएससी जो है हमारा काफी ना मतलब टफ समझा जाता है कि उसको क्लियर करना मुश्किल है, और बाकी जिस तरह पहले ने बात की है कि मोस्टली दिमाग में ये गलत बात बैठी होती है कि मतलब हम सिफारिश के बगैर नहीं जा सकते, रिश्वत के बगैर नहीं जा सकते, या इसमें हार्ड वर्किंग ज्यादा है या सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसके बारे में मैं पूछ रहा था आपसे। देखिए पीपीएससी तब तक मुश्किल है जब तक आप बढ़ते नहीं हो यार। सीएसएस करने वाले भी तो लोग वो भी आपकी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, किसी को मोटिवेशन मिली, उसने खुद को सरेंडर किया, वहां पे सरेंडर करके उसने अपनी बाकी सब चीजें छोड़ी, उसने टाइम दिया स्टडीज को, वो उसने अटेम्प्ट दी, वो सीएसएस कर गया। तो मुश्किल चीज तब तक होती है जब तक आप उस चीज को करते नहीं हो, जब तक आप उसके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ते। हमारे टीचर होते वो कहते थे कि यार मैंने उनसे कहा सर देखें सर केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है ना, ये फर्स्ट ईयर की बात है सर, ये ना नहीं कवर होती। वो कहते बेटा इंसान तो पहाड़ तोड़ देता है, ये तो फिर केमिस्ट्री है। कहता आप केमिस्ट्री को पकड़ो, केमिस्ट्री आपके आगे आगे भागेगी, मतलब ये कि वो आपसे जान छुड़वाएगी कि हाँ ठीक है। तो ये बात है कि जब आप इस चीज में घुस जाओगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल बस तब तक है जब तक आपने 3 से 4 मंथ बैठ के एक जिस तरह आपने एफएस में पढ़ा था, लाइक आप 12 घंटे 14 घंटे टाइम दे रहे हो स्टडीज को, आपको इसका टाइम देना पड़ना है। अगर आपने अपनी ये रूटीन 3 से 4 माह चला ली तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को बीट कर जाओ। आप मतलब कि अभी तो आप बिल्कुल टच हो स्टडीज से, अभी तो आप पास आउट भी नहीं हो गए हो। अगर आप अभी से इस चीज को टेकअप कर लेते हैं तो आप जैसा कौन हो, कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ टाइम देने की बात है। और जहां तक बात है सिफारिश की, रेफरेंस की, तो मैं कह चुका हूँ कि भाई हमारे बैच में से तकरीबन 88 और शायद 90 लोग हैं जो इस टाइम एसडीओस हैं हमारे पाकिस्तान में ही गवर्नमेंट जॉब से बैठे हैं। तो उनमें मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो कि बिल्कुल ना सिफारिश अफोर्ड करते थे और ना वो पैसा देना अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। तो ये है कि वो लोग भी तो बैठे हैं ना। अगर ऐसा हो तो शायद हमसे पहले या उनसे पहले कुछ ऐसे लोग इन जॉब्स पे होते हैं जिनको हम देखेंगे अभी तक वो ट्राई कर रहे हैं, उनका टेस्ट वगैरह क्लियर नहीं हो रहा। यानी कि एक ऐसे भी दोस्त हैं जिनके चाचू हैं वो मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी तक वो बंदा टेस्ट नहीं क्लियर कर पा रहा। इन्फ्लुएंस कहते हैं जी इंटरव्यू पे होता है, जो लोग इंटरव्यू लेने आए बैठे होते हैं आपको लगता है कि वो बड़े कोई आम से लोग होते हैं। ग्रेड 21 का रिटायर्ड जो ऑफिसर होता है, यानी कि जिसमें हमारे पाकिस्तान में टोटल ग्रेड 22 तक है, ठीक है, और 21वीं ग्रेड का रिटायर्ड बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है। आप मुझे बताएं वो मिनिस्टर से भी ऊपर है। हाँ उसको वजीर आजम पाकिस्तान पर्सनली जाकर रिक्वेस्ट करे कि प्लीज एक बंदा है मेरा, इसको आप रख लें, तो फिर है वो बात मान ले। हाँ जी, तो इतना इजी बिल्कुल नहीं है कि हाँ जी वो फलां मेरे चाचू हैं तो उन्होंने कह दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अक्सर लोग सिफारिश करवा के अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं। वो लोग इस चीज का बहुत बुरा मनाते हैं, गुस्सा करते हैं कि हमें सिफारिश नहीं करवाई गई है, और कुछ लोग के वहां पे इंटरव्यू में मुंह भी मारते हैं कि हाँ भाई तुमने मुझे सिफारिश करवाई है। तो उनको पता है कि उन्होंने अल्लाह को जान देनी है,
तो अपनी कब्र भारी कोई भी नहीं करता भाई मेरे। तो ये बात है कि हर बंदे को अपनी आखिरत की फिक्र होती है, और वैसे भी जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं वैसे भी वो कब्र के ज्यादा नजदीक होते हैं, हम तो यंग होते हैं और उनकी तो वैसी एज हो रही होती है। तो वो लोग मेरा नहीं ख्याल इस चीज पे कंप्रोमाइज करते हैं, जहां तक मैंने चीज को देखा है। जी प्लीज नेक्स्ट। अच्छा मुनीब, इसके बाद सिर्फ 3 क्वेश्चन आप और लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन शर्म पे लंबा होता जाएगा, तो 3 क्वेश्चन बस आप और ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो सर आप क्या प्रेफर करेंगे कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स किया जाए? और सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि बैचलर्स करते साथ ही जो बंदा गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो उसको फौरी क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि उसका बगैर टाइम ज़ाया हुए जो उसको प्रोसीजर है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसे क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए? मैं आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। बेसिकली आप लोगों ने अपना टाइम सेव करना है, ठीक है। हमने गाइडेंस देने में थोड़ा देर कर दिया, तो इसके लिए हम लोग लेट इस चीज में आए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर आपने मास्टर्स करना है तब भी, और अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है तब भी, मैंने अपनी बात ही यहाँ से स्टार्ट की थी कि आपने जो भी करना है आप उसको अब से स्टार्ट करें, उसको लेट ना करें। देखिए, आपके पास आउट होने से पहले ही एक गैट का टेस्ट होगा। अगर आपने एमएस करना है तो पाकिस्तान में एमएस के लिए आपको पहले गैट देना पड़ता है। आप गैट की तैयारी करें, गैट क्लियर करें, यहाँ पे आपका बीएस क्लियर हो, वहां पे आप एडमिशन ले लें। एमएस एमएस करना चाहिए, पीएचडी तक करना चाहिए, आपको बिल्कुल करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट है तो आपको एक अच्छी महजिद जॉब मिल जाएगी टीचर की, लेक्चरर की, ठीक है ना। या फिर आप कहीं पे लैब इंजीनियर भी जाके वहां पर भी साथ एमएस कर सकते हो, वो आपके लिए डबल फायदा होगा कि आप अर्न भी कर रहे हो और फ्री में आपका एमएस भी हो रहा है। तो आपने जो भी करना है, आप अगर आपने एमएस करना है तो आप अभी से गैट की तैयारी करें, और नेक्स्ट जो है वो गैट को क्लियर करें, और वो गैट आपका 2 साल के लिए वैलिड होगा। कहीं भी अप्लाई करने के लिए आपको पहले गैट की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप गैट दे लें। और अगर आपने दूसरी जॉब करनी है, ये जो है मतलब कि यूपीएससी के थ्रू आपने आना है फील्ड में या गवर्नमेंट जॉब पे, तो उसके लिए मैं 12 बता चुका हूँ कि आप इसको तैयारी स्टार्ट करें यहाँ से, अब जो मैंने बुक बताई है। और नेक्स्ट जो है इसका पूरा पूरा जो है वो प्रोसीजर मैंने पहले बताया है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको फिर से समझना है तो आप प्लीज मुझे, ये सरोज जो है इनके पास मेरा शायद अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, आप मुझे वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, मुझे आप टेक्स्ट करो, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा उस पर। अभी यहाँ मैं सारी एक्सप्लेन करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। तो सर एक क्वेश्चन और है मेरा कि जो है पीपीएससी का जैसे टेस्ट है सर, इसमें डोमिसाइल मैटर करता है? डोमिसाइल तब मैटर करता है कि जब सीट्स कोटे की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा एज है कि लड़कियां बहुत कम आती हैं सिविल में, उनकी सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं। जहाँ पर ओपन मेरिट है वो 55 पे है, गर्ल्स का मेरिट 40 भी होता है, 42 भी होता है, तो गर्ल्स के लिए इसमें 20 है। जो आपके कह रहे हैं वहां पर अभी हमारे यहाँ पर उस्मान बुजदार साहब जिला पंजाब है, तो पीपीएससी क्योंकि पंजाब के अंदर आता है, तो कुछ कोटा डिसाइड किया गया है साउथ पंजाब वालों का। तो अगर आपका डोमिसाइल साउथ पंजाब का है, जो एरिया साउथ पंजाब में आए हैं, तो वहां पर आपको उस पर कुछ अगर, लेकिन अभी जो एक साइड मैंने देखा है, जो वो कोटा है उनका भी मेरिट ओपन मेरिट के बराबर ही है। तो डोमिसाइल जो है, अगर आप फेडरल की जॉब्स हैं, हाँ, अगर जिसका वापडा जॉब अनाउंस करता है तो ये उसमें पंजाब का कोटा होता है, हर मतलब कि फेडरल का भी कोटा होता है, उसमें सिंध का भी होता है, बलोचिस्तान का, केपीके का। तो वहां पर शायद आपको थोड़ा सा, अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल है तो वहां पर कंपटीशन कम होता है, ठीक है। केपीके का है तो वहां पर कंपटीशन कम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन पंजाब में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है। अदरवाइज पीपीएससी में तो आपको डोमिसाइल का इतना खास कोई फायदा नहीं है। जी प्लीज नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि बंदा ग्रेजुएशन के बाद आदमी को जॉब मिल गई, फॉरेन स्टडी के हवाले से है, ऐसी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगती हैं। तो हम ग्रेजुएशन के बाद 2 साल कोई जॉब करते हैं प्राइवेट, अल्लाह करे गवर्नमेंट लग जाए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब बंदा कर ले, 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाए और बंदे की स्कॉलरशिप भी लग जाए, जैसे जर्मनी 10 स्कॉलरशिप दे रही है या कनाडा कोई स्कॉलरशिप दे रही है,
तो उसमें हमें किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर वो हमें एमएस की तरफ जाना चाहिए? आप तो मेरा क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। अगर जॉब की रिक्वायरमेंट, अगर स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट ही ये है कि 2 साल के लिए आप मतलब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आपने ये बात की है ना? जी तो जी। अगर उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पहले 2 साल जॉब अपनी की होनी चाहिए, तो फिर तो पहले आपको जॉब करनी चाहिए, ठीक है ना? आप उस स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको जो है 2 साल वो पहले जॉब करनी चाहिए। तो जैसे भी जॉब मिले, आपका फोकस होना चाहिए वहां पे कि मैंने जाना उधर है। ये मैं जो भी कर रहा हूँ, ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, कुछ लर्न कर रहा हूँ, कुछ जॉब कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ये मैं उस चीज के लिए कर रहा हूँ कि मेरा गोल वो है, ठीक है? तो आपको वो नहीं जॉब सर, कर लेनी चाहिए। जी मेरा बेनिफिशियल कौन सा होगा, यानी कि जॉब कंटिन्यू करते रहें या फिर वो फौरन ही जाएं हम, इसमें बेनिफिट किस चीज़ में है? बेनिफिट इन सेंस ऑफ, आप कह रहे हो कि इन सेंस ऑफ वेल्थ, यस इस सर। सेंस में आप यस ठीक सर, है, स्कोप में सर। ठीक है, स्कोप में। देखिए, मैं प्रेफर करूंगा कि जहां तक मेरा आइडिया है कि आपको वो जॉब, अगर आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, ठीक है, जहां पर आपको लग रहा है कि आपका इतना अच्छा फ्यूचर नहीं है, यहाँ जहां पर आपकी सैलरी जो है वो एक लिमिट तक है, तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप उस जॉब को क्विट करें और अपॉर्चुनिटी अवेल करें, अब्रॉड जाएं। वहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, ठीक है? टीचिंग इज अ बेस्ट प्रोफेशन, ठीक है? कहा जाता है कि ये पैगंबराना पेशा है, मतलब कि अंबिया वाला काम है टीचिंग करना। वो सिर्फ दीन के बारे में नहीं कहा गया, वो हर फील्ड के बारे में कहा गया है कि जहाँ पर जो भी टीचर्स हमारे हमें पढ़ाते हैं वो बिल्कुल ना उससे ये चीजें लिंक करती हैं। तो भाई अगर आप अब्रॉड जाते हो तो मेरे ख्याल वहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा करेंसी डिफरेंस उनके साथ बहुत ज्यादा है। आप यूरोप जाते हो, जैसे कि अपनी जर्मनी की बात की, ठीक है? तो मेरे भाई बता रहे थे कि वहां पर एक जो सिविल इंजीनियर है, उसको आवर्स के हिसाब से सैलरी मिलती है, लाइक 50 यूरोस एन आवर, ठीक है? इस तरह करके है। तो वो अगर वो ईयरली सैलरी पे जाता है तो उसकी अबाउट 50,000 यूरोस एक साल की सैलरी बनती है, जो पाकिस्तान में 1 करोड़ से ऊपर है। अगर उसका मंथली लेके आएंगे तो 7-8 लाख मंथली बन जाएगा, ठीक है? और इतना पैसा आप कहीं पे भी इकट्ठा नहीं कर सकते पाकिस्तान में जॉब करके। बिजनेस में आप करोड़ों में अरबों में चले जाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, आप मालिक रियाज बन सकते हैं। लेकिन जॉब करते हुए आप पाकिस्तान में, आपके लिए इतने पैसे इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फॉरेन में इसका चांस आपके लिए है। जी प्लीज। Thank you so much, Sir Kashif Bashir, for the enlightening presentation. You have almost covered everything briefly. We are grateful for your time and efforts. Your experience and the way you carried on was much of a great booster. Surely, whatever suggestions we heard today were of most benefits, yet the most interesting one we have had so far. We hope to hear from you again. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, और इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. And now our Director Management, Mr. Sarosh Aziz, will have few words with you people. काशिफ भाई, एट लास्ट थैंक यू सो मच। यकीन करें, मतलब आपने एक बार कहने पे मतलब आए, आपने इतना